نیوز پروگرام دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. یقین کریں یہ بات صحیح ہے کہ کچھ ایشوز کو خواہ وہ میں ہوں یا خواہ وہ کوئی اور ہو، ٹریبیون کی ہم نے بات کی، آپ فرنٹ لائن کی بات کر لیں، آپ ایکسپریس کی بات کر لیں، آپ دوسرے چینلز کی بات کر لیں، ان کو اس طریقے سے اٹھایا جا رہا ہے کہ جس سے واقعتاً کوئی پرووک نہ ہو جائے. خاص طور پہ میں اگین ریپیٹ کروں گا، اس بات کو ریکارڈ پہ آ جائے کہ ایک مفتی صاحب اور ایک آرٹسٹ کی ڈیبیٹ جو ہے اس کو ایکسپریس ٹریبیون اس طریقے سے اٹھا رہا ہے کہ کوئی جو اور کہہ یہ رہے کہ کوئی ایکسٹریمسٹ جو ہے کوئی ایکٹ نہ کر دے اس طرح کا. 8 دن سے اخبار کو لگ ایسے رہا ہے، تاثر یہ پھر ہے رائٹلی اور رانگلی بیچا جا رہا ہے صرف اسی بات کے اوپر کہ اس ڈیبیٹ کو پرولونگ کرتا کیا جائے. چاہے کسی کے ذہن میں نہیں بھی آنا تو مفتی کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور آرٹسٹ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ پرسیپشن جو ہے یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے اس میڈیا کو بیٹھ کے. لیکن ہم دوبارہ اپنے ٹاپک میں آئیں گے. رسول بھائی صاحب انہوں نے کہا کہ ایک فیکٹس کچھ بتایا آپ کو وہاں سے اسلام آباد سے، انہوں نے کہا جی پیچھے سے گولیاں، اور یہ فیکٹس سامنے ہم ڈسکس کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا امریکہ اس کے لیے پریشر ہے کوئی؟ نہیں بالکل آپ کریں کہ فیکٹس جو ہے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ انکوائری کمیٹی جو بیٹھی ہوئی ہے اس کی رپورٹ سامنے نہیں آتی، جب تک ابھی وہ ریمانڈ پہ ہے، ریمانڈ پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے تفتیش کی جا رہی ہے، حقائق اکٹھے کیے جا رہے ہیں. یہ حکومت کا کام ہے، پولیس کا کام ہے، نہ میرا کام ہے نہ آپ کا کام ہے کہ وہ تمام حقائق سامنے رکھ کے اس کے خلاف مقدمہ قائم کریں اور مقدمے کو چلائیں، عدالت میں جائے اور عدالت فیصلہ کرے کہ کیا ہوا اور کیا نہ ہوا. رضوی صاحب ہم اب ڈیفینسو ہیں، اپولوجیٹک ہیں امریکہ کے معاملے میں. کوئی اور کرمنل ہوتا، عام پاکستانی ہوتا یا کسی اور ملک کا ہوتا تو ہم شاید اس طرح نہ کر رہے ہوتے، لیکن امریکہ کو ہم نے اسپیشل اسٹیٹس دیا. میں ایک سوال ہے، دیکھیے اگر عام پاکستانی ہوتا تو ڈیفینیٹلی ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ تھا، کیونکہ جو ایمبسی سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ آپ کو ڈفرینٹلی کرنا پڑتا ہے. دیکھیے اس ایشو کا سیٹلمنٹ جو ہے نا یہ میڈیا میں نہیں ہوگا، نہ ٹی وی کے پروگراموں میں ہوگا نہ اخبارات میں ہوگا. اس کے لیے مختلف سٹوریز ہمارے اخبارات میں چلی ہیں، اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی اور انویسٹیگیشن کے بعد یہ معاملہ کورٹ میں جائے گا اور اس کے بعد یہ اس میں فیصلہ ہوگا. دوسری ڈیبیٹ جو اس میں چلتی ہے وہ ہے ڈپلومیٹک امیونٹی کی، اور وہ جو ہے ایمبسیز میں ڈپلومیٹک امیونٹی ہوتی ہے لیکن وہ ہر فرد کو نہیں ہوتی. کوئی ڈپلومیٹک سٹاف ہوتا ہے، نان ڈپلومیٹک ہوتا ہے، رینک میں فرق ہوتا ہے. اور جہاں تک یہ سوال ہے فیک آئیڈینٹی کا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایمبسی میں انڈر کور اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. انٹیلیجنس کے لوگ پاکستان کی ایمبسیز میں آپ چلے جائیے، جو انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں وہ انڈر کور ہوتے ہیں سارے کے سارے. ہو سکتا ہے یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں اگر فیک آئیڈینٹی ہے ان کی. نہیں، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ یہ انسان ایک تو ڈپلومیٹ نہیں ہے، ایز این امپلائی، اور پھر امریکنز کوئی چیز چھپا رہے ہیں کیونکہ پہلے انہوں نے کہا یہ ڈپلومیٹ ہے، لاہور میں بیسڈ ہے. آج نواز شریف صاحب کو فون کر کے امریکن ایمبیسڈر کہتے ہیں کہ یہ تو جی اسلام آباد کی ایمبسی میں کام کرتا تھا، اگر اسلام آباد بیس تھا تو بندوقیں لے کے لاہور میں کیا کر رہا تھا. اور ایک اور فیکٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اب یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وہ جو 2 موٹر سائیکلسٹ تھے وہ ایکچولی ہمارے انڈر کور لوگ تھے جو کہ غالباً فورنرز کو فالو کرتے ہیں اور وہ اس کو فالو کر رہے تھے. یہ کیا ایکٹیویٹی میں ملوث تھا جو پکڑا گیا تھا یا ریویل ہونے والی تھی کہ اس نے ان دونوں لوگوں کو مار دیا، یہ باتیں بھی اب نکلیں گی آہستہ آہستہ. اور میں سمجھتی ہوں یہ جب ایک فورنر جو کہ ایمبسی کے ساتھ اٹیچڈ ہے اتنا کھلے مرڈر ود امپیونٹی آلموسٹ کرے تو یہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ملک کے لیے کہ ہم نے اتنا زیادہ ایکسیس دیا ہے فورنرز کو، پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیز، نان ڈپلومیٹس کو کہ بندوقیں بھی وہ اٹھا سکتے ہیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے 3 مہینے پہلے انٹیریئر منسٹری نے کہا تھا کہ کوئی فورنر ڈپلومیٹ یا ادروائز بندوقیں نہیں اٹھائے گا، آرمز نہیں رکھے گا، پھر بھی یہ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ فیصلہ تو ہم نے نہیں کرنا لیکن میڈیا کا فرض ہے کہ لوگوں کو الرٹ رکھے کہ بیک روم ڈیل سے یہ شخص بھاگا نہ جائے ملک سے. خون کا جواب اس کو دینا ہوگا، کورٹس میں فیصلہ ہوگا، لیکن میڈیا کو یہ ایشو لائیو رکھنا چاہیے کہ ہماری حکومت جیسے پہلے بہت مرڈر کو جانے نہ دے. اب یہ عرض سن لیں ذرا، اس سے پہلے کہ آپ دونوں پہ آؤں، اب یہ تو گواہ رہیے گا سارے کے سارے کہ یہ یہاں پہ ڈویژن میں نے نہیں کروائی. آپ نے مجھے میڈیا کی رسپانسبلٹی کا یقین دلایا ڈفرنٹ پرسپیکٹو سے، انہوں نے میڈیا کی ذمہ داری کا مجھے بتایا کہ ڈفرنٹ پرسپیکٹو سے. میرا دل تو چاہ رہا ہے شیرین مزاری صاحبہ کی باتیں مجھے سب سے اچھی لگ رہی ہیں لیکن میں پھر بھی اس پہ آبجیکٹو ہوں. آپ یہ بتا دیجئے کہ جو انہوں نے باتیں کہیں اس پہ آپ ہنس رہے تھے ڈاکٹر صاحب، کیوں
آپ क्यों नहीं? आप क्यों इसमें आपके सीरियस इशू नहीं 3 पाकिस्तानियों की डेथ होना? नहीं, ये आप खुद, ये तो आप क्वेश्चन पुट कर रहे हो, फतवा नहीं दे रहा। क्वेश्चन नहीं पुट कर रहे, आप लफ्ज डाल रहे हैं मेरे को। ये एंकर का काम इसको विड्रॉ करता हूँ। आप हंस क्यों रहे थे उनकी बात? नहीं, सीरियस मौजूद चल रहा है। नहीं देखिए, मौजूद सीरियस है। इसमें मैं इसलिए इस बात पर हंस रहा था कि देखिए ये इश्यूज जो है ना, आप सारी उम्र डिस्कस करते रहिए मीडिया पे, आप सेटल नहीं कर सकते। ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि इसकी कई स्टोरीज चल रही हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और उसके बाद पता लगेगा कि असल स्टोरी क्या है। अगर आप इसको अमेरिका और पाकिस्तान की जंग का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो बड़े शौक से बनाइए, इसलिए कि पाकिस्तान में तो एक हल्का अमेरिका पाकिस्तान के हर मसले की वजह उसको समझता है। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि इस मसले पे इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद जो आपका लॉ कहता है उसके मुताबिक इसको ट्रीट कीजिए। और जो ये है जो फेक आइडेंटिटी है, या वो इस्लामाबाद में था या लाहौर में था, वो हो सकता है इंटेलिजेंस का बंदा हो, क्योंकि मैंने कहा है कि हर एम्बेसी में अंडर कवर अपॉइंटमेंट्स होती हैं। हमारी एम्बेसीज बाहर बैठी हैं, उनमें आपके इंटेलिजेंस के ऑफिसर, पुलिस के, आपके इमिग्रेशन पासपोर्ट वीजा सेक्शन में आपके पुलिस के FIA के बंदे अंडर कवर होते हैं। अच्छा सुनिए, एक और बात, दूसरा जो इसमें जो इशू जो है उसका है वो यही है कि जो इस किस्म के केसेस हैं वो आप उनको चलने दें, उसके मुताबिक फैसला हो जाएगा, वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी क्यों है रसूल बगैर साहब के ये अमेरिकन जो इसको फरार कर दिया जाएगा, ये भाग जाएगा, ये अखबारों में भी पढ़ने को मिलता है। सिक्योरिटी क्यों है? हुकूमत की मर्जी से कोई आदमी, हुकूमत भी डाउट है, हुकूमत भी डाउट है। जी देखिए, हुकूमत की मर्जी के बगैर कोई बंदा यहाँ से नहीं जा सकता। और इस वक्त जो बातें ये हो रही हैं कि हुकूमत अंदर से कोई समझौता करके इसको बाहर मुल्क से ना निकाल दे, ये जब हम ये बहस कर रहे हैं तो क्या पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की जिम्मेदारी नहीं बनती दफ्तर खारजा की कि मीडिया को, आवाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे कि क्या उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, नहीं है, वो डिप्लोमेटिक कोर में है या नहीं है, मसले खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, वो तो मसला कोई नहीं है जी। आप अगर आज के अखबार पढ़े, ये कह चुकी है फॉरेन ऑफिस, जी बिल्कुल, उसका ऑर्डिनरी वीजा था। मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। मेरा ख्याल में रसूल बख्श इतवार को अखबार नहीं पढ़ते, क्योंकि ये ऑलरेडी फैक्ट आ चुके हैं। मतलब इतवार के दिन लगता है आपने छुट्टी की है। और दूसरी बात ये इशू का बड़ा सिंपल है जी। एक मैं ब्रेक के बाद आपसे शुरू कर लूँ प्रोग्राम, ये सिर्फ ब्रेक का टाइम है, आपने बात आपने करनी है इंपॉर्टेंट, मैं चाह रहा हूँ बीच में ब्रेक ना हो। ये बात सही है जी, फैक्ट्स हमारे सामने है, सोशल सिक्योरिटी नंबर भी शामिल है इनका, और इनका जो मल्टीपल ऑफिशियल विजिट वीजा है, डिप्लोमेटिक वीजा नहीं है इन साहब का, जिन पे इस वक्त कत्ल का इल्जाम है। ये बात तो तय है। वो मुलाकातें किससे कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे, इसमें हम बात करेंगे फॉरेन ऑफिस के कहने के बावजूद। कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, कौन सपोर्ट नहीं कर रहा, उसकी डोमेन से बाहर जाके, इसमें हम जरूर बात करेंगे इस प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं रेमंड डेविस साहब का इशू जो है वो बड़ा इशू है, छोटा इशू है, किस लेवल का इशू को डील किस करना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पे पंजाब के वजीर कानून जनाब राना साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब सर, तो ये बता दीजिए पहले कि कोई अपडेट है आपको इस केस के ऊपर जो हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहें। इसमें देखें कामरान साहब, मामला ये है कि ये केस जो है ना, ये इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से जो है वो कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। राइट। क्योंकि डेविस साहब जो है उन्होंने ये बात एडमिट की है कि उन्होंने इन दोनों यानी लड़कों को जो है वो उन्होंने जो है वो फायर इनको किया, हिट किया है। अब उसके बाद मुकदमा जो है वो अंडर सेक्शन 302 दर्ज हो गया है और उनकी गिरफ्तारी जो है वो पुलिस ने जो है वो डाल ली। अब पुलिस जो है वो जो यानी मौके के ऊपर जो सीन ऑफ अकरेंस है और अकरेंस से मुतल्लिका जो एविडेंस है वो कलेक्ट करेगी और कलेक्ट करने के बाद उनको अदालत के सामने जो है वो रखेगी। इसमें किस एंगल से फायर हुए हैं और उस वक्त मोटरसाइकिल की गाड़ी की क्या पोजीशन। अच्छा राणा साहब, मुझे एक बात बता दीजिए, क्योंकि एंगल की आपने बात की ना, ये परसेप्शन ये आ रहा है कि सारे फायर जो है वो बैक से हुए हैं। बहरहाल ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है आपके सामने इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन कोई? मेरे बिल्कुल यानी ये सारी चीजें मेरे नॉलेज में है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है इसमें एक पूरा अपना मौक़िफ़ जो उसको फाइनल टच दे के अदालत के रूबरू पेश नहीं करती, मैं समझता हूँ उसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो शायद। अच्छा राणा साहब, ये दो तीन सवाल आपसे और मैंने पूछ रहे हैं, उसमें आपकी मर्जी होगी, ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड कि मामला बड़ा सेंसिटिव है, कोई जवाब ना देना चाहे तब भी, लेकिन मैंने सवाल आपसे पूछना है, आप जिसका रिस्पॉन्ड करें। एक तो ये परसेप्शन उभर रहा है कि
क्योंकि उनको एक बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है तो इन्वेस्टिगेशन इसलिए प्रॉपर नहीं हो रही कि पुलिस में दबाव ही बहुत है, और ये पुलिस के जराये ने बताया। जी राणा साहब, ये बिल्कुल गलत है। उनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। उनको अलहदा रखना जो है वो हमारी अपनी जरूरत है, क्योंकि उनका सिक्योरिटी प्रॉब्लम। नहीं, तफ्तीश के हवाले से सर, नहीं तफ्तीश के हवाले से देखे ना, एक आदमी जो है वो जब वो सारी बात बता रहा है, वो कह रहा है कि जी ये मैंने किया है, और उसके बाद वो ये कह रहा है कि जी मैंने फलां को फोन किया था, फलां गाड़ी आई है, उस गाड़ी में फलां लोग थे, जिस गाड़ी के नीचे वो अबैदुर रहमान जो है वो सड़क के ऊपर। कामरान साहब सॉरी माजरत से, इन्होंने उनको क्यों नहीं पकड़ा जिन्होंने रन ओवर किया है, जो दूसरी गाड़ी के लोग हैं? जी मैं पूछने लगा था इनसे कत्ल किया है, जी राणा साहब, उनको क्यों नहीं श्री पकड़ा? मजारी साहब का सवाल है ये। जी जिन लोगों ने रन ओवर किया है उस अबैदुर रहमान जिससे हलाक हुआ है, हमने उस हलाकत का भी मुकदमा जो है वो यानी 322 एक्सीडेंट नहीं बल्कि अंडर सेक्शन 302 आमदन कत्ल के दफात के तहत जो है वो दर्ज किया। और जो पकड़े क्यों नहीं आपने वो लोग? देखिए वो कॉन्सुलेट को हमने लिखा है, क्योंकि कॉन्सुलेट की प्रेमिसेस में इंटर होने से मुतल्लक ये आपके इल्म में है कि उसके कुछ यानी रूल्स रेगुलेशंस हैं। हमने उनको बाकायदा इन राइटिंग लिखा है। यानी राणा साहब आपने राइटिंग उसे पूछा कि जो ड्राइवर जिसने वो जो उसकी मदद के लिए उनकी आया अपना डेविस साहब की, वो ड्राइवर और वो गाड़ी हवाले की जाए पुलिस की, आपने ये लिखा है ना कॉन्सुलेट? इन राइटिंग जो है वो का जवाब नहीं आया। अच्छा, एक बात बताइए, श्री मजारी साहिबा और दूसरे बहुत से लोग राणा साहब ये बात कह रहे हैं कि उनकी जो आईडी है वो फेक है, उनका ये नाम नहीं है, और आपको फॉरेन ऑफिस ने बता दिया हुआ क्या है उनका नाम, क्या आपको इस बारे में कोई नॉलेज है? नहीं देखिए कामरान साहब, उसका पासपोर्ट हमारे पास है, उसके ऊपर पाकिस्तान का वीजा लगा हुआ है, हर चीज वेरीफाइड है। राइट, तो राइट, इसका मतलब पंजाब गवर्नमेंट को प्रेशर लेने को तैयारी को हमें इन्फॉर्मेशन ये भी मिली कि वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की है कौंसलर जनरल ने लाहौर की जो है। देखिए इसमें जो इस वक्त पोजीशन है, ये मेरी इतलात है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन आप बता सकते हैं कि पुलिस या पंजाब गवर्नमेंट ने जब मुकदमा दर्ज करके उसको अरेस्ट करके उसको कोर्ट में पेश कर दिया है, नाउ ही इन जुडिशियल कस्टडी, वो कोर्ट की कस्टडी में है। अब हम तो उसको रिहा ही नहीं कर सकते। अब अगर उन्होंने कोई मुलाकात राणा साहब की है ये तो मान लेना, मुलाकात तो हुई है। नहीं मुलाकात तो इसमें मुलाकात में तो कोई हर्ज नहीं। हाँ सही है, चले ठीक, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है प्रेशर नहीं लेगी गवर्नमेंट, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब को नहीं पता, मियां नवाज शरीफ साहब का इस बारे में बड़ा क्लियर स्टैंड है, व्यूज हम जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अमरीकी सफीर को भी यही बात कही कि मामला अदालत में से प्रेशर लिया जाएगा। जी रसूल बख्श साहब, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? ये हम मिस्र के इनकलाब को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बाकी वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए आपने इस मौजू को छेड़ा है, तो इसको नतीजे पे पहुंचना बड़ा ज़रूरी है, और जो नतीजे पे हम पहुंच सकते हैं वो ये है कि जो हुकूमत की तरफ से जो तफ्तीश हो रही है उसका इंतजार करना चाहिए, हक़ाइक़ सामने आना चाहिए। मुख्तलिफ मुतज़ाद खबरें हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, और जिस वक्त ये वाक़या हुआ है उस वक्त मैंने मीडिया को अच्छी तरह से मॉनिटर किया। अगले दिन अखबार पढ़े, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, तो बजाय इसके कि एक ऐसा केस कि जिसमें कि 3 जानें ज़ाया हुई हैं सियासत का और सफारतकारी का शिकार हो जाए, हक़ाइक़ सामने आनी चाहिए, और किसी ने जुर्म किया है, नीयत उनकी जुर्म करने की थी और उसको अमदन कत्ल किया, तो उसकी सजा पाकिस्तानी कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। राइट, आज का अखबार आपने नहीं पढ़ा? बात ये है कि अमेरिकन गवर्नमेंट तो डेफिनेटली वही स्टैंड लेगी जो आपने कहा ना, कौंसल जनरल की मुलाकात हुई या एम्बेसडर ने नवाज शरीफ साहब को फ़ोन किया। अमेरिकन गवर्नमेंट तो जाहिर है वो प्ली ये लेगी कि जी इसको हम जो है हम हमारी कोर्ट इसको डील करेगी, हम अपने लॉ के तहत डील करेंगे, तो एम्बेसी का हिस्सा है। लेकिन ये फैसला करना कि इसको पाकिस्तान के लॉ के तहत ट्राई किया जाएगा या अमेरिका को दिया जाएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला होगा। और इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन यही है कि इसको पाकिस्तानी लॉ के तहत 302 का दफा उस पर लगाई गई है, कोर्ट्स हमारी। लेकिन मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा, इससे पहले कि श्री मजारी साहब के पास जाऊं, रिजवी साहब ये बता दीजिए कि ये कैसा अजीबोगरीब लॉ है जिनेवा कन्वेंशन का कि कोई डिप्लोमेट हो वो कुछ भी कर ले, वो अगर डिप्लोमेसी के उसके अंदर अम्ब्रेला के अंदर है तो वो ही कैन गेट अवे। नहीं देखिए उसमें बात ये है गेट अलॉन्ग विद इट। नहीं, इसमें 2-3 चीजें आपको जहन में रखनी पड़ती है। इसमें पहली चीज तो ये है कि आपको ये देखना है कि कौन है जिसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है या नहीं, मैं कह रहा हूं जिसको है नहीं, जिसको है कर ले। नहीं, उसके लिए रास्ते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए रास्ते मसलन आप ये कह सकते हैं, पहला रास्ता ये है कि आप उस हुकूमत से कहते हैं कि इसकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को वेव कर दिया जाए।
دیٹس ون وے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس بندے کو نکال بھی سکتے ہیں اپنے ملک سے پرسنل نان گراٹا کہہ کے. تیسرا یہ ہے کہ جو ہوسٹ جس نہیں سزا تو وہ دیں گے, آپ کہیں گے اس کو ویو کریں. اچھا ٹھیک ہے, اس کا ویو کروا سکتے ہیں. مظاہر صاحب میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا, لیکن اس سے پہلے جو بات یہاں اٹھی ہے نا پروگرام میں, وہ یہ کہ سیاستدان کو سیاسی بنا رہے ہیں, تو سیاست ہو رہی ہے اس ایشو کے اوپر, یہ ایک نارمل ایشو ہے, اس پہ سیاست ہو رہی ہے. اس میں سیاست کیا ہے, ایشو بڑا سمپل ہے. ایک امریکہ